36. On the grasshopper and the cricket, we have done half poem. Half poem मैंने आपको समझाया Yes, ma'am. अच्छा. Now page Yes, number ma'am. 37. Half poem is left. Yes, I'm going to explain you now. See, the picture of cricket is given there. The poetry of earth is ceasing never means जो अर्थ की एक्टिविटीज है वो कभी भी खत्म नहीं होती है. सनराइज होता है, सनसेट होता है, मून टाइम पे निकलता है ना, फुल मून डे होता है, नो मून डे होता है. एवरीथिंग इज गोइंग प्रॉपरली. इट इज द एक्टिविटीज ऑफ अर्थ इज नेवर सीजिंग. बर्ड्स होती हैं, डेथ होती हैं, तो एवरीथिंग इज गोइंग ऑन. On a lone winter evening when the frost. अब विंटर का टाइम आया है और विंटर के टाइम में अब क्या होता है, लेट अस सी. Has wrought a silence means विंटर के टाइम में आप देखते हैं कि साइलेंस हो जाता है. सारे जो लोग होते हैं वो घर में बैठना पसंद करते हैं, बाहर निकलना नहीं पसंद करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड होती है. तो आप देखोगे कि रास्ते वगैरह बहुत ज्यादा खाली होते हैं उस समय और हर जगह अकेलापन सा छाया जाता है. From the stone there shrills the cricket's song. अब from the stone के यहाँ पर एक जो इंसेक्ट है वो आवाज कर रहा है. shrills मतलब आवाज कर रहा है. स्टोन के यहाँ पर एक जो इंसेक्ट है, that is a cricket. That cricket is making some sounds. The cricket song, वो क्या कर रहा है, वो साउंड सुना के वो गाना गा रहा है. In warmth increasing ever and seems to one in drowsiness half lost. अब क्या करता है, वो ऐसे करता है कि इस ठंड के मौसम में मुझे कहीं पर warmth मिल जाए. He is expecting like that somewhere he should get that warmth in this winter. तभी वो स्टोन के यहाँ पर छिपके बैठा है. And seems to one in drowsiness half lost. और ये हमेशा स्लीप में रहता है, नींद में. ऐसा लगता है कि हमेशा ये नींद में रहता है इनसे. Drowsiness half lost means he is in half sleep all the time. The grasshoppers among some grassy hills. Along with that हम grasshopper को भी देखते हैं, वो grassy hills में पाए जाते हैं. Cricket भी पाया जाता है winter season में. And grasshopper, what he is doing? Grasshopper is found on the grass. Means what is the basic purpose of this poem? To tell you that nothing is season. Everyone is doing their work. Grasshopper is doing his own job. Cricket is doing his own job. Means everyone is having something to do, one thing or the other. ठीक है? The activities are never ending. ना लोगों की एक्टिविटीज खत्म होती है ना और वो लगातार चलती रहती है. ऐसे ही हमें भी आगे बढ़ते रहना और चलते रहना. ठीक है? It is written by John Keats. The poem is written by John Keats. Now let us come to activity number 4. Match the following. Shall we do this? What do you mean by faint? Weak. Yes, faint is weak. Okay, faint is weak. Next one. Ceasing. Stop existing or happening. Stop existing or happening. Ceasing मतलब stop हो जाना, किसी बात का अंत हो जाना या end हो जाना. ठीक है? Now next, rot. Brought about. Brought about. Rot Brought is brought about. about. Rot is brought about. Has wrought a silence means has brought a silence. Winter has brought a silence. Drowsy. Feeling sleepy. Feeling sleepy. नींद आना. Shrill. Comes Through loud and clear. clear. Some noise. It is related to the sound which is loud and clear. ठीक है? Now let us come to next page. Page number 38. Answer the following questions with reference to the poem. What happens when all the birds are faint in the heat of the sun? When all the birds are faint in the heat of the sun, they hide in cool trees, and the voice runs from hedge to hedge, and the
grasshopper takes the lead. Okay, so what they are saying here? When all the birds, they are tired of the sun, they don't want to go outside in the sun, but which insect is taking the lead to go outside in the sun? The Grasshopper. grasshopper. Yes, we have seen in the first paragraph that where all the birds are hiding and they don't want to go outside in the hot sun. This insect grasshopper is not bothered about the sun, but he is bothered about his work. So he is not having that fear in his mind that he will faint or somewhat, right? And he is going outside to do Yes, his work. मतलब धूप भी है तो भी उसको काम पे जाना ही है. वो अपना काम अच्छे से कर रहा है और बाकी के बर्ड्स क्या कर रहे हैं? वो रेस्ट ले रहे हैं सारी चीजें. ठीक है? Understood? Understood? yes, ma'am. Okay. When can one hear the cricket song? हम क्रिकेट को मोस्टली कौन से सीजन में पाते हैं? May I say? Yes, Dipali. May I say? Yes, Dipali. One can hear the cricket's song on a lone winter evening when the forest has water silence from the stone their shells. What we can try that yes, one can hear the cricket song at the winter time. That will be enough. Yes. During the winter time or at the winter time. Okay. Now next. Yes, ma'am. Dash takes the lead in summer luxury. Who is he here? किसके बारे में बोला गया है? कौन सी player? The grasshopper. Grasshopper. Yes. Now next is activity number 6. Personification. Now children, actually in grammar we are having one topic named as figures of speech. Figures of speech is mainly for the poems, for the poetry sections. ठीक है? आप पोइट्री देखते हो कि हमेशा क्या राइमिंग वर्ड्स यूज करते हैं, घड़ी घड़ी कुछ वर्ड्स रिपीट करते हैं, है ना? आपने देखा होगा उसमें पर्सन्स के बारे में आता है, फीलिंग्स के बारे में आता है. मीन्स वी मोस्टली यूज फिगर्स ऑफ स्पीच. मोस्टली पोएट्स में हम फिगर्स ऑफ स्पीच के सेंटेंसेस हमें मिलते हैं वो पोएटिक इफेक्ट देने के लिए. वो आपकी देखेंगे कि आप सेंटेंसेस प्रॉपर कभी कभी नहीं होते, हाफ सेंटेंसेस ऊपर दिए होते हैं, हाफ नीचे दिए होते हैं. उसमें भी कभी आप कोई वर्ड रिपीट करके देते हैं, कोई लाइंस रिपीट करके देते हैं. Why is that so? Why is that so? To give the poem effect. पोयम के लिए इफेक्ट देने के लिए. जैसे कोई भी सॉन्ग, कोई भी जो हम सॉन्ग सुनते हैं तो उसमें आप देखोगे कि घड़ी घड़ी लाइंस रिपीट होती हैं. लाइंस रिपीट होती है ना सॉन्ग में. क्यों? क्योंकि वो सॉन्ग को एक इफेक्ट देने के लिए वैसा करते हैं. वैसे ही पोएम में भी लाइंस रिपीट होती है, वर्ड्स रिपीट होती हैं और वर्ड्स इम्प्रॉपर ऑर्डर में होते हैं, राइट? ऑर्डर उनका सही नहीं होता है, फिर भी वो सेंटेंस की मीनिंग बनाते हैं. तो ये सब पोएटिक इफेक्ट के लिए होता है. इन सब सेंटेंसेस को हम फिगर्स ऑफ स्पीच में डालते हैं. ये और फिगर्स ऑफ स्पीच, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच. वन इज पर्सोनिफिकेशन. उसमें से एक जो फिगर ऑफ स्पीच है वो पर्सोनिफिकेशन है. अब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन में पर्सन के बारे में बताया जाता है. एक पर्सन को कोई क्वालिटी जो है वो किसी और के पास होती है. जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड. Here the poetry is personified as to having the human quality of dying. अब यहाँ पर किसी बेजान चीज को कोई ह्यूमन क्वालिटी दी जाती है. जैसे मरने की जो क्वालिटी है या जीने की जो क्वालिटी है, हंसने की, बोलने की क्वालिटी जो है, ये ह्यूमन बींग्स की है. डांसिंग की, सिंगिंग की क्वालिटी जो है ये ह्यूमन बींग्स की है. लेकिन ये अगर क्वालिटी किसी और के पास हम देते हैं, मीन्स किसी और चीज को देते हैं, जैसे यहाँ पर अर्थ को दी गई है क्वालिटी. द अर्थ ऑफ द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड. द क्वालिटी ऑफ बीइंग डेड, द क्वालिटी ऑफ डाइंग इज गिवन टू अर्थ. तो अर्थ को पर्सोनिफाई किया. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. आपको समझ में आया? हम रीड कर लेते हैं. देखिए, the entire poem is a good example of the poetic device personification, where objects or animals have human
क्वालिटीज कि किसी ऑब्जेक्ट को या एनिमल्स को एक इंसान की क्वालिटी। जीत पटेल, why your audio is on? हाँ जी, तो किसी भी चीज को, बेजान चीज को या एनिमल्स को कोई ह्यूमन क्वालिटी देते हैं तो उस क्वालिटी को हम पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हियर इट इज गिवन द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड, द क्वालिटी ऑफ डाइंग इज गिवन टू अर्थ, ठीक है। अर्थ को दी गई है पर्सन की क्वालिटी। Now give me 5 examples of personification from the sentences of poem. When all the birds are faint with the hot sun. Faint हो जाना किसकी क्वालिटी है? Faint mean चक्कर आना, कमजोर हो जाना, चक्कर आना, किसकी क्वालिटी है ये? Why only now 8 students are there? किसकी क्वालिटी है फेंटिंग की? चक्कर आना या कमजोरी महसूस करना, ये इंसान की क्वालिटी है। ये किसको पास की गई है? ह्यूमंस। ये ह्यूमन की क्वालिटी है, किसको पास की गई है? सी द सेकेंड लाइन ऑफ द सेंटेंस। बर्ड्स को। जी बर्ड्स को दी गई है, ठीक है। जब कोई ह्यूमन की क्वालिटी बर्ड्स को या किसी बेजान चीज को देते हैं तो उसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्वालिटी, द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ पेंटिंग इज गिवन टू द बर्ड्स, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट, एनी मोर एग्जांपल्स? Ma'am, delights. With this delights for when tired out with fun. It is given to delighting. Delights. What else? Tired out. थक जाना किसकी क्वालिटी Tired. है ना? Instead of delights, Humans. we can take this tired out as the quality of being tired. Yeah, the quality of tiredness is given to the grasshopper. Yes or no? थकने की जो क्वालिटी है वो इंसान की है, Yes. ग्रासहॉपर को दी है, ठीक है। Yes, any more sentences? Drowsiness. Drowsiness. And seems to one in drowsiness half lost. तो drowsiness की जो नींद आने की क्वालिटी है वो किसको दी गई है? Grasshopper. And seems to one in drowsiness half lost, the grasshoppers among some grassy hills, ठीक है। क्रिकेट का है कि ग्रासहॉपर का है? And seems to one in drowsiness half lost. Yes, Grasshopper. grasshopper, it is relating to grasshopper. And seems to one in drowsiness half lost, भले ही वो half lost होता है grasshopper. We are finding the grasshopper in some of the grassy hills. हाँ बोलिए। The cricket is taking lead. In winter, cricket is taking lead and grasshopper is asleep. Yes, Deepali? Nothing, ma'am. Nothing? Okay. Did you get the examples of personification? Okay, Ma'am, one is remaining. One is remaining. Yes, just one. Ma'am, how about for when you tired out with fun? So, ma'am, fun is a Fun human. is a quality, yes, human quality yes. of. It is given again to the grasshopper. Yes. Okay, so we are done with the 5 sentences. Yes, ma'am, we आपको are. कुछ personification के sentences समझ में आए? 5 नहीं तो 2 3 कुछ समझ में आए आपको?
Yes, ma'am. जितने समझ में आते लिख दीजिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, 5 लिखिए, आपको ठीक है। पेज नंबर 39, fun with language. This you are going to do for your homework. ये आप कर सकते हो होमवर्क के लिए। मैम मैंने इसे ट्राई किया था बट मुझे 2 नहीं आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर हम सभी बच्चों को ये सॉल्व करने के लिए दे देते हैं, फिर हम नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करें। ओके मैम। अच्छा, क्लूज दिए वहां पर, आपको क्लूज की मदद से ये सॉल्व करना है। जैसे देयर इज लाइफ ऑन द प्लैनेट, तो अर्थ दिया है ना, तो आपको फर्स्ट नंबर अर्थ मिल गया, ठीक है। अभी सॉल्व करना है आपको, सारे बच्चों को अभी सॉल्व करना है। ना कर लोगे होमवर्क के लिए? यस मैम। ठीक कर लेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट एक्टिविटी में आ जाइए, पेज नंबर 40। राइमिंग वर्ड्स आप कर लेंगे? राइमिंग वर्ड्स तो हम कर सकते हैं ना खुद, सन, फन, रन, बन। यस मैम। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 9, नो योर सराउंडिंग्स। ये आप ट्राई कीजिए, कौन है? I'm a large brown insect that is sometimes found in warm places or where food is kept. इंसेक्ट है ब्राउन कलर का। मैम वो है ना, Where you will find this brown insect where the food is kept? Cockroach? मैम माउस। Mouse? ब्राउन कलर इंसेक्ट है। कॉकरोच। हाँ, कॉकरोच नहीं आ जाते हैं। कॉकरोच। हाँ जी, कॉकरोच। बट मैम कॉकरोच तो ठंडी जगहों में रहते हैं, गर्म जगह में नहीं। अच्छा, ये तो हमारे घर में भी तो होती है, हमारे घर में कौन सी ठंडी होती है? किचन के यहाँ पर तो मोस्टली कॉकरोचेस ही होते हैं, आपने नहीं देखा हाइट होती है बैठते हैं, तो वहाँ पर कौन सी ठंडक मिलती है? में घुस जाते हैं। हमेशा होते हैं। में तो गर्मी ही होती है। हाँ, तो खाना रखा होता है किचन में, मोस्टली हम खाना रखते हैं तो किचन में ही हम खाते हैं कॉकरोचेस को। चलिए, I'm a small insect, then also you find, if you're finding any other insect, मॉस्किटो। हाँ जी, mosquito. I'm a small insect which bites and sucks blood of people. तो ये आप कर लोगे, कौन सा है? You just try by yourself. ये सब आप ट्राई कीजिए, नहीं आते तो हम सॉल्व करेंगे। एक टाइप ऑफ बीटल, these all are type of insects and this animals only, insects only. Will you do this? Yes, children. बस फोर्थ वाला करवा सकते हो? I'm an insect with long black legs and I jump into the air and make a vibrating sound. आप बताइए मुझे। ड्रैगन फ्लाई? Maybe vibrating sound. और बम्बल बी, ड्रैगन फ्लाई और बम्बल बी। But does it have black long and black legs? ड्रैगन फ्लाई ड्रैगन फ्लाई doesn't have। ठीक है, सब बच्चों को फाइंड करने दीजिए ये। ओके, सब बच्चों को फाइंड करने दीजिए, then I'll tell you the answers. Now activity number 10 is also simple. Make a greeting card with beautiful pictures of birds and insects, flowers and trees. ये एक्टिविटी तो आप कोई भी आपके घर में ड्राइंग पेपर होगा तो उससे बना सकते हो ग्रीटिंग कार्ड, और फिर मुझे इमेज आप ग्रुप में भेज दीजिए। कर लेंगे आप? ग्रीटिंग कार्ड में आपके बर्ड्स आ जाने चाहिए, ट्रीज, फ्लावर्स, इंसेक्ट्स, एक अच्छी सी सीनरी बनानी। कर लोगे? यू कैन टेक वन सिंगल ड्राइंग शीट
and then you can fold it into two. Okay, ma'am. You can make a greeting Yes, card ma'am. of कर it, देंगे. right? ठीक है. कर देंगे. Yes. Okay. ठीक है. तो अब यहाँ तक we are done with unit number 4 and I am trying Ma'am, to make Xerox extra निकाल के चिपका दे questions. दो. क्या बोल रही हो? मैम जेरोक्स निकाल के चिपका दे दो. किसका जेरोक्स? आपने दिया ना वो. क्या किसका जेरोक्स चिपकाना आपको?